Hello friends, you if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक देखा था मिसेलेनियस 4 का। अब नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो प्रूव करके लाना है 4a² b² c²। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन a² प्लस ab b² plus bc ac plus c² ac and c². Now a common from first column, b common from c2 and c common c3। तो ए बी सी कॉमन निकल जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में से। नाउ ए कॉमन निकल गया, देन ए प्लस बी, हियर बी कॉमन, दैट मीन्स कि सी बी और बी प्लस सी। देन सी कॉमन, ए प्लस सी कॉमन, देन ए और हियर सी। नाउ इन C1 कॉलम C1 माइनस C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो क्या होगा ए बी सी एज इट इज, ए माइनस बी, C1 माइनस C2 ये तो वो ऑपरेशन हो जाएगा, ए माइनस ए माइनस सी, तो प्लस ए माइनस ए कट -2c। देन ए प्लस बी माइनस ए, तो ये जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी है माइनस बी माइनस ए जीरो। हियर बी कॉमन, तो हियर बी प्लस सी रिमेनिंग और हियर सी। तो बी माइनस सी -2c, सी बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए एंड सी। क्लियर? नाउ -2c कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, -2c कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। फ्रॉम C1, तो -2ab c² 101 c b plus c, a plus c, a and c। क्लियर? नाउ R1 R3 माइनस R1 कर देते हैं, तो 1 क्या 1 यहाँ से हट जाएगा इन R3 माइनस R1, तो 2 लीडिंग जीरो मिल जाएंगे। यहाँ पे भी जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो है। -2ab c² 1c a plus c 0 b a 1 minus 1 0 c minus b plus c, सॉरी R3 माइनस R1 है, 1 minus 1 0 b plus c minus c, दैट मीन्स कि ईयर b c माइनस ए माइनस सी, तो ईयर माइनस ए प्लस सी माइनस सी कट। तो नाउ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर 1 a इंटू बी माइनस ए बी, ए इंटू बी माइनस ए बी। फॉर दिस एलिमेंट्स पूरी रो क्या हो जाएगी जीरो, -ab माइनस ए बी -2ab माइनस माइनस प्लस 4a² b² c² इक्वल टू RHS। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 7 number question. A inverse is given and B is given. Find the AB inverse. Here not given A but given A inverse. So we know that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. So first of all find B inverse, because we have a A inverse. So find B inverse. So for B inverse, determinant of B is equal to क्या होगा, from the question 1
3 1s are 3, minus 0, minus 2, 1 1s are 1, minus 1, minus 0, minus 2, 2 1s are 2, minus minus plus 0. Then 3 minus 0, 3, minus minus plus 2, minus minus plus minus minus 2 2s are 4. 3 plus 2, 5 minus 4 is equal to 1. For B inverse B11, so 3 minus 0 equal to 3, B12 minus minus 1 minus 0, that means key 1, and B13 2 minus 0 equal to 2. Now B21 for this element, vertical horizontal skip 2 1s are 2, and minus 2 plus 4, but equation का minus, that means कि minus 4 2 minus 4 minus 2 minus minus plus 2, that means कि B21 equal to 2. B22 for corner element 1 1s are 1, minus 0 1, B23 for this 0 vertical horizontal skip, minus 2 1s are minus 2, minus 0, then plus 2. Clear? Now B31, so B31 is equal to 0 into 2 0, 3 2s are 6, minus minus plus, then result is B31 6, B32 पहले से माइनस आ जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्किप 0 1s are 0, माइनस माइनस प्लस, बट इक्वेशन का माइनस माइनस 2, that means कि B32 plus 2, B33 3 1s are 3, minus minus plus 3 plus 2 equal to 5. Then B inverse is equal to 1 upon determinant of B into adjoint B. तो determinant of B is equal to 1, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन अ ब्रैकेट 3 1 2 2 1 2 6 2 5. Clear? So now we have B inverse and as well as A inverse in question. तो now हम फाइंड कर सकते हैं AB inverse. AB inverse is equal to क्या है, B inverse into A inverse. Now value of B inverse is like that, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, and value of A inverse is 3 minus 15, 3 minus 15, 5 minus 1 6 minus 2 1 minus 5 and 2. Clear? So now vertical horizontal multiplication, 3 3s are 9, 15 2s are 30, 3 3s are 9, 50 2s are 30, 6 5s are 30. First row, second column, 3 1s are 3, 6 2s are 12, 6 2s are 12. First row, third column, 3 1s are 3, 5 2s are 10, minus 10, 6 2s are 12. Now second row, first column, 3 1s are 3, 15 1s are 15, 5 2s are 10, 1 1s are 1, minus 1, 6 1s are 6, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 5 1s are 5, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 15 2s are 35, 5s are 25, 2 1s are 2, 6 2s are 12, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 5 2s are 10, 5 2s are 10. क्लियर?
तो नाउ रिजल्टेंट मैट्रिक्स +30 -30 कट, 9 +12 -12 कट, -3, 12 + 3 15, 15 - 10 5, here 15 - 10 -5, -5 + 3 -2, 4 1, -5 -5 + 6 = 1, here 4 + 1 5, -5 0, 30, -30 + 25, -5 + 6 = 1, here -12 + 12 0, -10 + 10 0, and remaining 2. This one is my AB inverse. Clear? Now next. So now question number 8. A is given, verified that adjoint A whole inverse is equal to adjoint A inverse, and second A inverse of A inverse equal to A. तो क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पहले ए इनवर्स, दोनों क्वेश्चन में ए इनवर्स यहाँ पे भी चाहिए यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं पहले ए इनवर्स निकाल देता हूँ. फॉर ए इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 1 as it is, 5 3s are 15, -1 minus minus +2, 5 2s are 10, -10 -1 +1, 2 1s are 2, -2, 3 1s are 3, -3, 15 -1 14, 10 + 1 11, -11 -11 2s are -22, 3 + 2 5, -5. तो 14 -22 -5 is equal to -13 does not equal to 0, then we can find the A inverse. तो for adjoint A, first A11, तो 15 -1 equal to 14, A12, तो minus of -10 -1 minus minus plus 11, A13 -2 -3 equal to -5. Now A21, for this element vertical horizontals keep 5 2 ja -10, 1 1 ja 1, -1 -11 plus 11, A21 is equal to 11. A22, 4 corner element, 5 1 ja 5, -1 equal to 4. A23 for this element vertical horizontals keep -0 into 9, 0, vertical horizontals keep 1 1 ja 1, 1 2 1 ja 2 plus 2, so result A23 is equal to -3. A31, for this element 2 1 ja 2, -2 -3 -5, A32 minus vertical horizontals keep 1 1 ja 1, minus minus plus 2, -3. A33, for this element 3 1 ja 3, 2 2 ja 4, -1. Clear? So now A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. Now determinant of A is -1 by 13 and adjoint A 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1. तो मुझे क्वेश्चन के अंदर ए इनवर्स कहीं ना कहीं चाहिए, तो ए इनवर्स मिल गया. नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ए है, उसका इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स. तो मैं उसकी एलएचएस साइड ले रहा हूँ कि एडजॉइंट ए है, उसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स. तो अज्यूम दैट कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी. तो मुझे फाइंड क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है. तो बी को मुझे, ये जो है पोर्शन, उसको मुझे पूरा क्या समझ लेना है, बी. तो इसके ऊपर से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेता हूँ.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 14, 4 1 जा 4 -4 -3 3 जा 9 -11 11 1 जा 11 -11 -5 3 जा 15 प्लस प्लस माइनस -5 11 3 जा -33 4 5 जा माइनस +20 तो 14 इंटू 9 एंड 4 9 4 13 14 इंटू 13 तो -182 हो जाएगा ये 11 15 तो -26 इंटू -11 दैट मीन्स कि +286 हो जाएगा -33 +20 तो -13 माइनस +65 तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 169 डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं। तो ये b है, उसका एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर्स माइनर्स फाइंड करना है। माइनर a11 सॉरी b है b11 तो b11 क्या होगा 4 1 जा 4 -4 यहाँ पे है -4 -9 -4 -9 -13 सेकेंड b12 -11 -15 -26 +26 and b13 -33 +20 तो -13 clear। now b21 for this element vertical horizontals keep 11 1 जा 11 -11 5 3 जा 15 तो -11 -15 तो -11 -15 -26 b21 +26 plus b22 4 corners 14 1 जा 14 -14 -5 5 जा 25 -14 -25 तो -39 b23 for this element 14 3 जा और 42 -42 11 5 जा 55 -42 +55 तो ये होगा -42 +13 but result is -13। now b31 for this element 11 3 जा 33 -33 4 5 जा 20 -13 for this element 14 3 जा 42 -42 11 5 जा 55 +55 तो result is -13 833 14 4 जा 14 4 जा 56 14 4 जा 56 11 11 जा 121 56 -121 तो result is -65। so now b inverse is equal to 1 upon determinant of b into adjoint b। the determinant of b is equal to क्या है 169 clear। तो 169 in a bracket -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। तो नाउ एवरी एलिमेंट को हम क्या एवरी एलिमेंट्स में से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 कॉमन निकाल देंगे तो 1/13 हो जाएगा 116 एंड 13 का स्क्वायर है। तो हियर -1 2 -1 1 -3
-1 -1 and here -5. बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इक्वल टू, तो हमने एज्यूम क्या किया था, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, दैट मीन्स कि एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स था। तो ये हमारा फर्स्ट साइड आ गया। नाउ ये रिजल्ट 1 हो गया। नाउ सेकंड चेक करते हैं कि सेकंड पोर्शन क्या है उसका, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो वी हैव ऑलरेडी ए इनवर्स तो हमने फाइंड करके रखा हुआ है, उसका मुझे क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जो ए इनवर्स है उसको मैं सी ले लेता हूँ, वो क्या है 1/30 1/-13 14 11 -5। पहले ही हमने ए इनवर्स तो स्टार्ट में ही फाइंड कर लिया था ना, 11 4 -3 -5 -3 -1 -5 -3 -1। तो इसका मुझे, इसको मैंने सी ले लिया है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 14/13 11/-13 and minus plus 5/13 11/13 4/13 minus plus 3/13 here minus 5/13 plus 3/13 here 1/13। ये मुझे मिला सी। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट सी, तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट ही ले लिया मैट्रिक्स की जगह पे डिटर्मिनेंट में। तो एडजॉइंट सी फाइंड करने से पहले इसका मुझे क्या पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो ही मैं एडजॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं डिटर्मिनेंट चेक कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा, -14/13 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल्स की 4 1 जा 4 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट में 4/13 इंटू 13 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/13 इंटू 13। यहाँ पे माइनस की साइन नहीं थी तो ये माइनस की साइन रह जाएगी यहाँ पे, और 4 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11/13 इन अ ब्रैकेट 11 1 जा 11/13 इंटू 13 माइनस 5 3 जा 15/13 इंटू 13 प्लस 5/13 इन अ ब्रैकेट 11 3 जा 33 minus 33/13 into 13 minus minus plus 5 4 is 20/13 into 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 and 4 13 हो जाएगा ये। तो -14/13 -13/13 इंटू 13 प्लस 11/13 in a bracket 11 minus 11 minus 15 minus 11 minus 15 तो -26/13 इंटू 13 प्लस 5/13 -33 प्लस 20 -13/13 इंटू 13। तो 13 13 कट, 13 2 जा 13 13 कट, तो -14/169 -22/169 and -5/169। तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। तो 14 में से 22 और 5 27, 22 माइनस 14 दैट मीन्स कि -13।
by 169, तो result is minus 1 by 13 does not equal to 0, then we can find the adjoint C. क्लियर? तो हम इससे adjoint C क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. नाउ इसका एडजॉइंट मुझे फाइंड करना है, तो C11 क्या होगा फॉर दिस एलिमेंट, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -4 अपन 13 -4 अपन 13, 4 1 जा 4, 13 इंटू 13. तो फर्स्ट रो तो यहाँ से ही लिख देते हैं, -9 अपन 169 डायरेक्टली ही लिख दो. तो C11 क्या होगा, 9 + 4 -13 अपन 169, -13 अपन 169, दैट मीन्स कि -1 by 13. नाउ C12, तो C12 इज इक्वल टू -11 अपन 169 -15 अपन 169, तो -26 अपन 169 -2 by 169. C13 is equal to -33 अपन 169 प्लस 20 अपन 169, तो हो जाएगा -13 अपन 169 देन -1 अपन 169. तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की तो बात हो चुकी. नाउ C21, नाउ फॉर C21 क्या होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्कीप. तो 11 1 जा 11, 5 3 जा 15, 11 1 जा 11, 5 3 जा 15. तो C21 क्या होगा, माइनस की साइन तो ऑलरेडी बाहर होगी, 11 1 जा 11 -15, क्योंकि डिवाइड में तो 13 ही है, तो 169 तो सबके डिवाइड में आ जाएगा. -26 माइनस C21 -26 -26, तो ये +26 हो जाएगा. -26 माइनस माइनस +26 डिवाइड 169, तो ये हो जाएगा 2 by 13. नाउ C22 तो 14 1 जा 14, 5 5 जा 5 5 जा 25, 14 4 जा 14 1 जा 14. C22 क्या होगा, -14 169, 5 5 जा 25 अपन 165, 45 -39 डिवाइड 169 -3 by 13. Now C23 for this element vertical, 14 3 जा 42, 11 5 जा 55, -14 + 55, बट आगे माइनस की साइन होगी. 14 3 जा 42 + 55, तो 55 माइनस 42, तो -13 + 13, बट -13 डिवाइड 169, तो -1 अपन 13. नाउ सेम C31 हो जाएगा, 11 3 जा -33, 5 4 जा +20, -33 + 20, तो -33 + 20 169, 169 -13 डिवाइड बाय 169 -1 by 13. C32, तो उसमें माइनस की साइन पहले से आ जाएगी. 42 55 -42 + 55, 169 169 + 13 -13 169 -1 by 13. Now last element C33 is equal to
14 4 जा 56, 11 11 जा 121, 56 minus 121, तो ये हो जाएगा -65 डिवाइड 169 -5/13। तो एडजॉइंट सी क्या होगा? 2 minus 1/13 minus 2/13, 2/13, सॉरी यहाँ पे 13 आ जाएगा ना, 1 माइनस 1/13, तो इसको एज इट इज ही लिखना है। 2/13 माइनस 3/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 5/13। तो सबके डिवीजन में से मैं क्या कर रहा हूँ, 13 कॉमन ले लेता हूँ, बराबर। तो एडजॉइंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5 equation 2। From equation 1 and 2, adjoint A inverse is equal to adjoint A inverse, क्योंकि adjoint C is equal to हमने inverse assume किया। क्लियर? नाउ पार्ट 2, सेकेंड क्वेश्चन है A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू A। तो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही A इनवर्स तो फाइंड कर लिया था। हाँ, तो A इनवर्स ऑफ A, तो नाउ क्वेश्चन के स्टार्ट में इनवर्स फाइंड कर लिया था, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा, -1/13। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स तो पहले ही हमने देखा था। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स 1/13, ये रहा, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। नाउ A इनवर्स ऑफ इनवर्स, A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ इन 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या है, 1 -1/13, और एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स क्या, 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो 1/13 1/13 कट और माइनस की साइन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रिजल्ट इज 1 2 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, clear, equal to A। now next question, now 9 number question is that कि इवेल्युएट करना है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो x y x प्लस y y x प्लस y x x प्लस y x एंड y। तो नाउ इन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, देन 2x plus 2y, same here 2x plus 2y, here 2x plus 2y, y x plus y x plus y x x and here y। now 2x plus 2y common
फ्रॉम R1 में से ये कॉमन निकाल देते हैं, तो 2x प्लस 2y कॉमन, इनर डिटर्मिनेंट 1y x plus y 1 x plus y x 1 x y. Now in C2 minus C1, in C3 minus C1. So 2 common x plus y, here 1 y x plus y as it is. C2 minus C1 1 minus 1 0, x plus y minus y 0, x minus y, so here minus y, sorry 1 minus 1 0, x plus y minus y, so here x. Now C3 minus C1 1 minus 1 0, x minus y and y minus x minus y, then minus x. क्लियर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. तो माइनस कॉमन निकाल देते, माइनस 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के. क्लियर. 2 तो मल्टीप्लाई में था. नाउ नेक्स्ट, नाउ इवेल्युएट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 और R3 माइनस R1. फर्स्ट ऑपरेशन है इन R2 माइनस R1 एंड अनदर ऑपरेशन R3 माइनस R1. तो 1xy as it is, R2 minus R1 1 minus 1 0, x plus y minus x y. Here y minus y 0, 1 minus 1 0, x minus x 0, x plus y minus y, that means here x. Now determinant solve करते हैं 1 x into y xy minus 0, then result is xy. Clear. Now next 11 to 16 क्वेश्चंस हम थर्ड पार्ट में देखेंगे. यही एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, उसके अंदर 11 to 19 के क्वेश्चंस हम देखेंगे. क्लियर.